السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سامعین کرام، نکاح اور کامیاب شادی کے تیسرے کلاس میں موجود ہمارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کہ نیک لڑکیوں سے شادیاں کرو، صالحہ، عفیفہ، پاک باز، پاک چال و چلن، پاک عادات و کردار، صاف ستھرے اخلاق والی بچیوں سے، لڑکیوں سے شادیاں کرو۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہونے والی شریک حیات، ہم سفر، جیون ساتھی کیسی ہونی چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے کیسی لڑکیوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے اور ابھارا ہے؟ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو شریک حیات، جیون ساتھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں یا شادی کے لیے جس کو ہم پیغام دینے جا رہے ہیں، وہ ہمارے مہینہ دو مہینہ، سال دو سال خالی بستر کے ساتھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے ہر نشیب و فراز، اٹھان اور چڑھاؤ، اور زندگی کے ہر سانس، ہر لمحے کی ساتھی ہے، جس سے نہ ہم جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا فطری طور پر جدا اور الگ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہم سے جسمانی طور پر، فطری طور پر، روحانی طور پر جدا ہو کر کے سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اور چونکہ شادیاں ہمیشہ پوری زندگی میں وفاداری کے ساتھ نبھانے کے مقصد سے کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ شادیوں کا مقصد پاک اور حلال ذریعہ سے خواہشات نفس کو اللہ کے فرمان کے مطابق پوری کرنا اور بچے باپ والا بننا، اس لیے شادیوں کے ذریعے بیٹیاں حاصل کرنا اور بیٹے حاصل کرنا۔ اس لیے ہمارے وہ دوست، وہ احباب جو شادی کے کگار پر ہیں یا اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ شادیوں کی خواہش اور چاہت رکھتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے لیے آج کا یہ درس بہت ہی اہم ترین ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کا یہ کلاس بچیوں کی ماں اور بچیوں کے باپ اور بچیوں کے دادا دادی، بچیوں کے بھائیوں کے لیے بھی یہ درس بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح ہمیں شادی کرنے سے پہلے یہ ریسرچ کرنا ہے، یہ پتہ لگانا ہے کہ ہماری بیوی کیسی ہو، اسی طرح بچیوں کے ماں باپ کو بھی چاہیے
بچیوں کے داداؤں کو بھی چاہیے، دادیوں کو بھی چاہیے، بچیوں کے گارجنوں اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہن، اپنی پوتی، اپنی بیٹی دلہن بنائے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری نظام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا بھی ایک دستور اور ایک قانون ہے۔ چنانچہ بچیوں کے گارجنوں کو بھی چاہیے ہم اپنے ہونے والے داماد کو کیسی دلہن دیں۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے دلہن کے انتخاب کرنے میں، چننے میں ہمیں کن خاص خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی ہی ہماری شریک حیات، جیون ساتھی، بیوی صالحہ، نیک، عفیفہ، اخلاق کا پاک باز، زبان کی صاف ستھری، معاملات کی میں بہتری رکھنے والی، جسم کی خوبصورتی اور صفائی وغیرہ وغیرہ والی ہوگی، اتنی ہی ہم مردوں کی زندگی، بگڑی ہوئی زندگی، بہکی ہوئی زندگی بھی بہت عمدہ انداز سے گزر جائے گی، گھر جنت کا دہ بن جائے گا۔ جتنی ہی ہماری بیوی نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، عفیفہ ہوگی، صبردار ہوگی، اتنا ہی ہمارا گھر سعادت مند گھر ہوگا، نیک بخت گھر ہوگا، جنت کا، دنیاوی جنت کا ایک کونا ہوگا۔ چاہے ہم امیری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو اپنے گھروں کے اندر، اور چاہے ہم غریبی کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہو اپنے گھروں کے اندر، چاہے ہم بیماری کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہو اپنے گھروں کے اندر، اور چاہے تندرستی کی حالت میں ہم زندگیاں گزار رہے ہو اپنے گھروں کے اندر، چاہے ہم آرام اور عشرت اور سکون کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہو اپنے گھروں کے اندر، یا ٹینشن، غم، فکر اور ہر طرح کی پریشانیوں کی حالت میں ہم اپنے گھروں کے اندر زندگیاں گزارے ہو، جتنی ہی ہماری جیون ساتھی، جتنی ہماری زندگی کی ساتھی، ہماری زندگی کا ایک چکا، ایک پہیا، ہماری بیوی، ہمارے بچوں کی ماں، ہمارے گھر کی ایک ملکہ، ہمارے گھر کی ایک رانی، ہمارے گھر کی ایک شہزادی، ہمارے گھر کی ایک نازنی، جتنے ہی زیادہ صالحہ، عفیفہ، نیک ہوگی، اتنے ہی ہم سعادت مند ہوں گے، اتنے ہی ہم نیک بخت ہوں گے، اتنے ہی ہماری پرسکون زندگی گزرے گی۔ چنانچہ بیویوں کو پیغام نکاح دینے جس لڑکی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، یا جن عورتوں سے ہم شادی کر چکے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری شریک حیات، ہماری بیوی نیک ہو۔ اس درس میں موجود تمام ساتھیوں، نیک کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ دولہا کیسا ہونا چاہیے، چونکہ پہلے دولہن کو دیکھ لیا جائے، تب اس کے بعد دولہا کیسا ہونا چاہیے، نوشا کیسا ہونا چاہیے، وہ بتاؤں گا، یہ اگلے جمعہ کے درس میں۔ نیک کا مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے یاد رکھیں، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیک جو نسل کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، اور دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی نیک سے نیک تر ہو، اور نہایت عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی، اپنی شرمگاہوں کی رکھوالی کرنے والی پاک دامن ہو، ایسی ہی لڑکیوں سے شادی کرنا افضل، بہتر اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम है। एक हदीस हम सुने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और यह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। इस रिवायत के अंदर अपनी बीवियों को या जिस लड़की से हम शादी करना चाहते, एक कसौटी मौजूद है, एक तराजू मौजूद है, एक पैमाना मौजूद है कि हमारी होने वाली बीवी या हमारी मौजूदा बीवी कैसी हो। अल्लाह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, आम तौर पर औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पर या औरतों के अंदर 4 चीज़ों को देखकर शादी की जाती, या तो चारों को या इन चारों में से किसी एक को देख करके शादियां की जाती है। और आज भी है, आज भी औरतों के अंदर, औरतों से, लड़कियों से जो शादियां की जाती हैं, इन्हीं 4 चीजों में से किसी एक चीज की बुनियाद पर। कुछ लोग होते हैं कि चारों चीजों को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं 2-3 चीजों को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं खाली एक चीज को देखते हैं। आम तौर पर ये मिजाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लिमालिहा, पहली चीज, बहुत सारे लोग अपनी या अपने बेटों की शादियां करते हैं कि लड़की कितनी मालदार है, लड़की कितने मालदार की बाप है। माल को देखकर, दौलत को देखकर, सरमाया को देखकर, कि जिस तरह जमाने जाहिलियत में मक्का के अंदर जब बच्चे पैदा होते थे तो देहात की औरतें आकर के ले जाती थी उनकी परवरिश के लिए, ताकि उनको मेहनताना मजदूरी अच्छी मिले। यतीम बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली दाया नहीं लिया करती थी। यतीम बच्चे को पालने पोसने दूध पिलाने के लिए कोई दाया नहीं लिया करती थी, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा का मामला हुआ। क्यों? क्योंकि वो दूध पिलाने वाली मजदूर तबका की औरतें ये जानती थी कि इनाम और इकराम मेहनताना अच्छे अंदाज में बाप ही से मिलेगा, और जब बाप ही नहीं, बच्चा यतीम है तो कैसे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला दाई हलीमा के साथ हुआ, आपको सामने रखे। ऐसे ही आज के समाज के अंदर अक्सरियत, अल्लाह रहम फरमाए, हिदायत है, लड़की की मालदारी को बुनियाद बना करके शादी की जाती है, या लड़की के बाप या गार्जियन कितना सेठ है, कितना मालदार है, उसको देख करके शादी की जाती है। वली हस्बिहा, या औरत के खानदान, हसब और नसब, नस्ल को करके देखी शादी की जाती कि किस ऊंचे खानदान की, किस ऊंचे नसब और नस्ल की है। और या तो शादी की जाती है वली जमालिहा, औरतों की खूबसूरती देखकर कि कितनी हसीन है, कितनी जमील है और कितनी खूबसूरत है। और आज देखिए, हाँ, क्या कहा जाए, आज तो मुकाबले होते हैं, फला की बहू उतनी खूबसूरत नहीं जितनी मेरी बहू खूबसूरत है। लगता है कहीं बाजार में, बाजारे इजहारे हुस्न जमाल में ले जाकर के स्टेज पर बिठाना है। या तो लड़कियों से शादी की जाती है खूबसूरती के बिना पर, वलिदीनिहा, या लड़कियों से शादी की जाती उसके दीन को, उसके मिजाज को, उसके दीन को, उसकी नेकी को, उसकी शराफत को देख करके शादी की जाती। आम तौर पर इन्हीं 4 बुनियाद पर शादियां की जाती, या तो माल की बुनियाद पर, या तो हसब व नसब की बुनियाद पर, या खूबसूरती के बुनियाद पर, और या फिर दीनदारी की बुनियाद पर। अब आइए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बुनियादों को जिक्र फरमाया है। अल्लाह के रसूल ने मशवरा क्या दिया है, अल्लाह के रसूल ने तालीम क्या दी है कि माल देख के शादी करो, या हुस्न जमाल देख करके शादी करो, या जात पात और नसब और नस्ल देख करके शादी करो, या दीन देख करके शादी करो। अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनिए, फज़फर बिदाति दीन, दीनदार लड़कियों से शादी करो, दीन समझ लड़कियों से शादी करो,
جن کا اخلاق دیندارانہ ہو، جن کا معاملہ دیندارانہ ہو، جن کی چال و چلن دیندارانہ ہو، جن کا مزاج دیندارانہ ہو، اللہ کے رسول کا یہ مشورہ وحی الہی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی کوئی رائے نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول اکرم کے سجھاؤ سے بہتر عمدہ سجھاؤ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول جو اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تعلیم ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا کر کامیابی اختیار کرو، سعادت مندی اختیار کرو، تمہارے ہاتھ ہمیشہ سعادت مند رہیں۔ مفہوم؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ہماری بیوی کیسی ہونے والی؟ دیندار ہو۔ کیونکہ اگر لڑکی دیندار ہے تو ہر طرح کی سعادت میسر ہو جائے گی، ہر طرح کا سکون مل جائے گا، ہر طرح کی راحت اور اطمینان کا ہمارے گھروں پر منڈ لائے گا، نیک بختی کی برکھا ہمارے گھروں پر ہوگی۔ اس وجہ سے اور اس وجہ سے کہ صافِ محشر نے جہاں ذکر کیا کہ ان 4 بنیادوں پر لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا دیندار لڑکی کو پسند کرنا۔ بلکہ ایک ضعیف روایت ہے اور بیان کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ ضعیف روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خالی حسن کی بنیاد پر، خالی مال کی بنیاد پر، خالی نسب اور نسل کی بنیاد پر شادی کرنے سے روکا بھی ہے، حالانکہ یہ روایت ضعیف اور غیر قابل قبول ہے۔ تو ہماری بیوی نیک ہو، ہماری ہونے والی بیوی نیک ہو۔ دوسری چیز، بیویوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہے، اچھی بات ہے، باعث سکون اور باعث شادمانی اور مسرت و خوشی ہے کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کریں۔ کنواری جو مطلقہ نہ ہو، جو بیوہ نہ ہو، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ایک صحابی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کا ذکر ہوا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے شادی کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کس سے شادی کی ہو؟ کہ ایک بیوہ سے۔ وجہ یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فَحَلَّ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبَكَ، کیوں تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے مٹکتی تم اس سے مٹکتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، کیونکہ کنواری لڑکیوں کے اندر جو مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے، جو شرمیلا پن ہوتا ہے، جس میں ان کے حسن و جمال کا اظہار ہوتا ہے، جو کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے میاں بیویوں کے درمیان، اس سے اچھا بیوہ نہیں کر سکتی، مطلقہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک شوہر کے پاس سے گزر کر کے آتی ہے۔ تو ہماری بیویاں کیسی ہوں؟ کنواری ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسری خوبی بیوی کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو۔ بازاری لفظ کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے بالکل اپنے شوہر کی عاشقہ ہو، عشق کی درجے تک وہ اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور کیا ہو؟ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ نیک بیوی کی خوبیوں میں سے وہ اپنے شوہر کو ٹوٹ کر چاہنے والی ہو، چاہے شوہر بدخلق ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ اس طرح ہو کہ شوہر اگر اس کے سامنے گھر پر ایک ہی بستر پر ہے، یا اس کی نظر سے غائب ہے منٹ 2 منٹ کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے، سال 2 سال کے لیے، تو وہ ایسے ہی ہو شوہر کی یاد میں، شوہر سے عشق کرنے میں، شوہر سے محبت کرنے میں، جیسے کہ مچھلی کو
पानी से चंद मिनट के लिए निकाल दीजिए तो बिल्कुल उसके ऊपर क़ियामत बर्पा हो जाती है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदा वल वलूदा फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली लड़कियों से शादी करो, क्योंकि मैं रोज़े क़ियामत अपनी उम्मत की तादाद की ज़्यादती पर फख्र करूंगा, जितनी ही मेरी उम्मत ज़्यादा हो। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? लड़की की माँ को देखो, लड़की की माँ जो आपकी होने वाली सास है उसको देखो कि वो आपके ससुर को कितना टूट कर चाहने वाली है और कितने बच्चे जनने वाली है। तो ये खूबी औरतों के ऐसी लड़की से शादी करो जो देखने में, अनुमान में, अंदाजे में खूब अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली है और उसे खूब टूट करके चाहने वाली है। मेरे भाइयों साथियों, नेक औरतों का हासिल करना क्यों ज़रूरी है ये भी जान लीजिए। ज़रा पानी ले आओ जी। नेक लड़कियों से शादी करना क्यों ज़रूरी है? नेक लड़कियों से शादी करना ही बेहतर और अफजल इसलिए है कि आप अपने घर में आप अपना घर बसाना चाहते हैं, और शादी खाना आबादी कहा जाता है। शादी खाना बर्बादी नहीं कि खाना माने घर। शादी इसलिए नहीं की जाती है कि घर बर्बाद हो जाए, बल्कि शादी इसलिए की जाती है कि घर आबाद हो जाए। सिर्फ औलाद ही से नहीं, बरकत से, महक से, खुशियों से, राहत से, इत्मीनान से, सुकून से हमारा घर लबालब भर हो जाए। हमारे घर से एक पल के लिए सुकून गायब ना हो, और सुकून गायब होकर परेशानियां ना आए। तो वो शख्स जो अपने घरों में नेकबख्ती, सआदतमंदी का पेड़ लगाना चाहता, फलदार पेड़ लगाना चाहता है, फलदार अपने नफा बख्श खूबसूरत अपने घरों के अंदर टाइल लगाना चाहता है, एसिया लगाना चाहता है, खूबसूरत बिस्तर चाहता है, खूबसूरत फर्श चाहता है, तो वो नेक लड़की से शादी करे। नेक, क्योंकि उसी के जरिए इंशाअल्लाह अज़ीज घर में, गिलास मिलाओ, घर में सआदत आएगी, नेकबख्ती आएगी, खुश नसीबी आएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। सुनो, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत, जिसे इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-जामे अस-सगीर के अंदर जिक्र किया है, और ये रिवायत सही है। कहते हैं हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन सआदत बिन आदम, आदम के बच्चे की नेकबख्ती में से है, सआदत मंदी में से है, आदम की औलाद की अच्छी किस्मत है, ये नेकबख्ती है, ये सआदत मंदी है। क्या क्या? अज़्ज़ौजतुस सालिहा, नेक बीवी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक आदमी की खुश नसीबी, अच्छी किस्मत, अच्छा नसीबा, नेकबख्ती, सआदत मंदी किस चीज के अंदर है? जिन चीजों के अंदर, उनमें से एक है नेक बीवी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी बीवियों को नेक बनाए और हमें भी नेक बनाए, हमारी बच्चियों को नेक बनाए, हमारी बहुओं को नेक बनाए, और मुसलमानों की सारी बच्चियों को नेक बनाए। नेक बीवी। आप घर में शादी करने जा रहे हो, अपनी जिंदगी का एक मजबूत पहिया खरीदने जा रहे हो, महर दे करके अपने घर में खुशियाँ लाने जा रहे हो, अपने घर में अपने घर को बसाना चाहते हो, अपने घर को सआदत से, नेकबख्ती से, खुशकिस्मती से
आबाद करना चाहते हो तो कुर्बान जाओ, छोड़ो जहेज का चक्कर, छोड़ो बारात का चक्कर, छोड़ो वरासत का चक्कर, छोड़ो दुनियावी ठाट बाट का चक्कर, मारो लात, रद्दी की टोकरी में फेंक दो जहेज को, बारात को, फहशकारियों को, हरामकारियों को, दहेज को, तिलक को, और क्या कहते हैं, छकाई और बजाई को छोड़ो। ये सब जाहिलियत के काम है, ये सब गैर मुस्लिमों के काम है, ये गैर मुस्लिम, ये हिंदुओं के काम है। आओ अपने आका के फरमान को सुनो कि आदम के बच्चों की नेकबख्ती, सआदतमंदी, अच्छी किस्मत क्या है, में से क्या है, अज़्ज़ौजतुस्सालिहा, नेक बीवी, नेक बीवी, वल मरकबुस्सालिह, और नेक अच्छी संजीदा सवारी। ये नहीं कि पेट्रोल डाले, गाड़ी में गियर लगाए, क्लच दबाए और थोड़ी दो जब बस ठुस, और अच्छी सवारी। वल मस्कनुल वासिअ, कुशादा घर, कुशादा घर। ये तीन चीज है आदमी की नेकबख्ती की पहचान में से है, सआदतमंदी की निशानियों में से। नेक बीवी, अच्छी सवारी यानी दुरुस्त ठीक ठाक सवारी, और कुशादा घर। ये अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया। इस हदीस की रोशनी में ज़रूरी है कि हम शादी खाना आबादी करते हैं तो घर में कदम रखने वाली खुशियों का सामान, सुकून का सामान, ज़ेब व ज़ीनत का सामान नेक लड़की हो। अल्लाह के लिए क्यों नेक लड़की, क्यों नेक लड़की ही से शादी की जाए? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये रिवायत सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1467 है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अद्दुनिया मता, ये दुनिया साजो सामान है, और दुनिया के जितने साजो सामान हैं, ये प्लेट, ये फ्लैट, ये बिल्डिंगें, ये गाड़ियाँ, ये सवारियाँ हमेशा हमेशा के लिए हैं, ख़त्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली। दुनिया सारा का सारा साजो सामान है, और ऐसा साजो सामान है जो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, छूट जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, व खैर मताइ दुनिया, बिस्मिल्लाह। अरे भाइयों, दाहिने हाथ से पी रहा हूँ, कुछ देखने वाले कहते हैं कि बाएं हाथ से, ये मेरा दाहिना हाथ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनियावी जितने साजो सामान, ठाटोबात, मालो असबाब हैं, ये सब सामान है, लेकिन ये कैसा सामान है, फना हो जाना। खैर मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। नौजवानों, शादियों के फिक्र में इधर उधर टामक टोइयां मारने वाले लोगों, अपनी शरीके हयात तलाश करने वाले लोगों, अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं, व खैर मताइ दुनिया अल मरअतु, दुनिया का सबसे कीमती असासा, दुनिया का सबसे कीमती सामान नेक औरत है, नेक औरत है। कोई कह सकता है कि शेख और रहमान साहब सईदी, भाई ये औरत भी तो मर जाएगी। हाँ ठीक है, ये भी फना होगी, ये भी मरेगी, लेकिन जितनी ही आपकी बीवी नेक होगी, उतने ही नेक काम में, अच्छे काम में, भले काम में आपकी मदद करेगी, आपको उभारेगी, आपके अंदर शौक दिलाएगी, और उसके उभारने की वजह से, उसकी तरबियत की वजह से, उसका आपके दीनी मिजाज बनाने की वजह से आप नेक काम करेंगे, जन्नत का काम करेंगे, जहन्नम के काम से तौबा करेंगे, तो आपका ये नेक अमल जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमारी बीवियों को नेक बनाए, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को नेक बनाए, हमारी बहुओं को नेक बनाए। तो इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? दुनिया का हर सामान से बेहतर कीमती सामान नेक बीवी है। एक तीसरी नेक बीवी को तलाशना चाहिए। एक मुसलमान की पसंद वही होनी चाहिए जो हमारे माई आयशा, माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अनहुन्ना के शौहर नामदार
हम सब के आखिरी पैगंबर अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की पसंद क्या थी, उनकी चाहत क्या थी। अल्लाह के रसूल से कोई ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, जो मॉडर्न का सही माना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों से एडवांस घर कोई हो सकता है जो अल्लाह के चाहत के मुताबिक एडवांस हो। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा कोई हसीन और जमील हो सकता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अधिक और ज़्यादा कोई अल्लाह का मुकर्रब हो सकता है। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं हुब्बिबत इलैया, अल्लाह के रसूल फरमाते हुब्बिबत इलैया अलमरअतु सालिहा, हमें नेक औरत ज़्यादा पसंद है। खुशबू अल्लाह के रसूल को पसंद थी, बहुत पसंद थी खुशबू, और औरत भी खुशबू ही है। औरत अगर बदनेक हो जाए, बद हो जाए, बुरी हो जाए, तो घर में बदबू ही बदबू रहेगी। जो लोग शादियां किए हैं, अगर क्लास में है या बाद में सुनेंगे, अंदाजा कर लें। अगर औरत नेक नहीं है, नेक मिजाज, नेक तीना, नेक चाल चला, नेक अखलाक, नेक बर्ताव नहीं है, तो घर में चाहे वो सौ सिंगार किए बैठी रहे, ओ बनी ठनी, बदबू ही बदबू, क्योंकि सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं, मुस्कुराहट नहीं है, खुशियां नहीं है। लेकिन अगर औरत नेक है, बहुत ही काली कलूटी है, बहुत ही काली कलूटी है, लेकिन उसकी नेकी की वजह से घर में खुशबू ही आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे नेक औरत ज़्यादा पसंद। जब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिहा, अफीफा, नेक औरत ज़्यादा पसंद है, तो उनके उम्मतियों को जहेज पसंद करना चाहिए, वरासत पसंद करना चाहिए कि हमारी होने वाली बीवी का कोई भाई नहीं है, सारा मुझे ही मिलेगा। फर्नीचर पसंद करना चाहिए, धुर मोटरसाइकिल या कार पसंद करना चाहिए, चाहे वो 100 हैंड की हो, 2 हैंड की हो, बल्कि हमें अल्लाह ताला से डरने वाली नेक बीवी पसंद करना चाहिए, क्योंकि बीवी हमारी जितनी ही नेक होगी उतने ही सआदत हमारे घरों में आएगी। अब आज के इस कोर्स का एक हिस्सा उन बंदों के लिए जो शादियां करना चाहते हैं कि हम नेक बीवी के तलाश में क्या करें। पहली चीज आप नेक बीवी चाहते हैं, आप अपने घर में जो 5 बच्चों की बीवी, 6 बच्चों की बीवी, 2 बच्चों की आपकी बीवी चाहते हैं कि आप वो नेक हो जाए, या हमारे बच्चों को नेक बीवी मिले, नेक बहू मिले, तो पहली फुर्सत में हमें खुद नेक बनना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, हमें खुद नेक बनना चाहिए, क्योंकि नेक लोगों की मदद अल्लाह ताला करता है। वो नेक नौजवान जो पाक दामनी हासिल करने की खातिर नेक लड़कियों से शादी करता है, उसकी मदद करना अल्लाह ताला पर वाजिब है। और अल्लाह अगर वो गरीब है तो मालदार कर देगा, धन्ना सेठ कर देगा। हमें खुद नेक बनना चाहिए। दूसरा मशवरा क्या, हमें अल्लाह ताला से नेक बीवी मांगना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। दुआ कि ऐ अल्लाह तो हमें नेक बीवी दे। सजदों के अंदर, आखिरी तशहुद में, रात के तीसरे पहर, अजान और इकामत के दरमियान, बारिश के वक्त, सफर के वक्त, दिनों और रात में ज्यादा से ज्यादा वो नौजवान हो जो शादी के कगार पर हो, जो शादी करने के लिए परेशान हो और चाहते हो कि हमें नेक शरीक हयात मिले, तो नेक बनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के आगे अपने खाली हाथ को अल्लाह ताला पर यकीन करके, दुआ के कबूल होने की यकीन करके, जल्दबाजी से बचते हुए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तो हमें नेक बीवी मैसर फरमा। तीसरा मशवरा, जब आप किसी लड़की को पैगाम निकाह देना चाहते हो, देने से पहले नमाज इस्तिखारा पढ़ लो, नमाज इस्तिखारा पढ़ लो, नमाज इस्तिखारा पढ़ लो। आप नेक बन गए,
दुआ की, इस्तिखारा करने के बाद अक़्द कर लिया, नेक कर लिया, तो अब आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है। दुल्हन बना करके ले आए, अपनी ज़िंदगी का एक चक्का बना के ले आए, शरीक हयात बना करके ले आए। वो औरत है, बाएं पिछली से पैदा हुई है, अगर उसके अंदर कोई कमी है नेक होने में, संजीदा होने में, शरीफ होने में, तो आप उसे नसीहतें करो, उसके टेढ़पन मिजाज का ख्याल करके, टेढ़ी पिछली से पैदा होने का ख्याल करके, जल्दबाज होने का यकीन करके, जल्दी टूट जाने वाली और जल्दी रूठ जाने वाली आदत पर यकीन करके बच्चियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, औरतें बहुत जल्दी छूट जाती हैं। औरतें कांच हैं, और कांच जब फर्श पर गिरेगा, लोहे पर गिरेगा, तो चकनाचूर हो जाएगा। उसके नाजुक मिजाजी का ख्याल करते हुए, उसके एक कमज़ोर मखलूक का ख्याल करते हुए, उसके जल्दी फैसला लेने का लिहाज करते हुए, उसके रूठने का ख्याल करते हुए, उसके बिखरने का, बिछड़ने का ख्याल करते हुए, क्योंकि आप उसके ऊपर हाकिम हैं, आप कव्वाम हैं उसके ऊपर। इन सारे उसके निस्वानी मिजाज, सिनफ नाजुकी का ख्याल करते हुए आप उसे नसीहत करें, आप उसे वसीयत करें। घरों के अंदर ऐसी चीज़ें रखें जिससे उसे नसीहत मिले। शरीफ संजीदा ऐसी फैमिलियों से दोस्ती रखें, उनके यहाँ शरीयत का पासो लिहाज रखते हुए कभी कभार ले जाएं उनको, कभी जो उन्हें नसीहत करें, अच्छे समाज को देखें, अच्छे लोगों को देखें। लेकिन आज मामला क्या है, दिन में घर भर नेक है बीवी, बहुत नेक है, लेकिन शौहर साहब क्या है, उससे बढ़कर के शैतान है। क्या लाए 12 बाई की क्या रख दिए, टीवी, मोबाइल, ये कार्टून, ये कुत्ते बिल्ली की तस्वीर। वो बेचारी नेक होने के बावजूद घर के खराब माहौल से मुतासिर होकर शौहर से भी बुरी हो जाती है, और जब शौहर पर जब बुरी हो जाती है, बददीन हो जाती है, तो शौहर पर जब आरा चलाती है, तो ऐसा बदबख्त शौहर बहुत ची करता है। ऐसे शौहरों पर कोड़े मारना चाहिए, जो अपने घरों के अंदर शैतान को लाते हैं, जो अपने घर के बच्चों को शैतान बनाना चाहते हैं, जो अपनी बीवियों को नाफरमान बनाना चाहते हैं। ऐसे वसाइल और ऐसे जराए ला करके कारी कमाई से रखते हैं, जिनसे उनकी बीवी, उनका बच्चा जहन्नम का लुकमा बने और जन्नत के रास्ते से दूर हो जाए। तो बहरहाल वक्त का ख्याल करके वो बच्चे जो शादियां करना चाहते हैं, उनके लिए बर वक्त ये 3-4 मशवरा नेक बने, दुआ करें। जब बीवी को पैगाम, होने वाली बीवी, अख्तियार करने वाली बीवी को पैगाम देना चाहें तो इस्तिखारा कर लें। और एक बात और मैं बढ़ा रहा हूँ, अच्छे दीनदार वफादार आप अपने खैर ख्वाह से मशवरा भी कर लें, और जब ला करके अपने घर की रानी बनाएं, मलका बनाएं, शरीक हयात बनाएं, जीवन साथी बनाएं। फितरत की वजह से, औरत होने की वजह से कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें। अल्लाह सबसे पहले हमें ये तौफीक दे। अब आइए, थोड़ा सा टाइम ख़त्म हो रहा, मुख्तसर तौर पर नेक बीवी, नेक बीवी, नेक बीवी, नेक बीवी। तो आइए मुख्तसर तौर पर नेक बीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी तब वो नेक मानी जाएगी। क्योंकि आज हमारा बिगड़ा समाज तो नेक उसको समझता है जो घर में फटाफट काम करने वाली हो, बेहतरीन डिश बनाने वाली हो। शरीयत के मिजाज के मुताबिक मुसलमान लड़कों मिजाज बनाओ। आइए मैं बतलाना चाहता हूँ कि नेक बीवी के अंदर क्या क्या खूबियाँ होंगी तो वो नेक मानी जाएगी। नंबर 1, बात कड़वी ज़रूर है मगर हकीकत है, और बड़ा प्यारा, बड़ा अनोखा, करोड़ों में एक मशवरा है अता रहमान सईदी का आप सबके लिए। अपनी बीवी बनाने से पहले उस बच्ची के माँ बाप का अकीदा देख लो कि क्या वो तौहीद वाली है कि नहीं।
ایسا تو نہیں شرک و کفر کرنے والی ہے، تعویذ گنڈے والا ماحول ہے، وہ عقیدے ایمان والی ہے کہ نہیں، اسلام والی ہے کہ نہیں، عقیدہ کے اندر، اس کے عقیدہ کے اندر کہیں شرک تو نہیں، چاہے شرک اصغر اور چاہے شرک اکبر، شرک سے وہ پاک ہے، شرک سے وہ بیزار ہے، شرک سے وہ نفرت کرنے والی ہے، شرک کو ناپسند کرنے والی ہے، شرک کو گھروں سے بھگانے والی ہے۔ عقیدہ دیکھ لے، کیونکہ ایسا بھی دیکھا گیا بہت سارے صحیح عقیدے والے بدعیہ عقائد کے گھر کی بچیاں لے آئے، پورا کا پورا گھر مزاری ہو گیا، درگاہی ہو گیا، اور ماننے کیا کیا ہو گیا، عقیدہ۔ اور کہیں اس کے عمل میں بدعت تو نہیں ہے، وہ بدعتی، وہ مشرک کی بچی تو نہیں ہے کہ ہر دن بدعت، شب معراج منوا رہی ہے، شب بارات منوا رہی ہے، رجب کا کنڈا بھروا رہی ہے، اور 12 ربیع الاول منا رہی ہے، 12 وفات منا رہی ہے، محرم منا رہی ہے، مولود کرا رہی ہے، فاتحہ کرا رہی ہے، 2 سال کے بعد شادی نہیں، بچے نہیں ہوئے، شوہر کو ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے لے گئی علی حجویری پر، لے گئی کچھوچا پر، لے گئی اجمیر پر، ہر استھان پر ٹیکا اور ٹکوایا، ہر استھان پر چڑھایا، اور اللہ کے ہاں بہت بڑی بغاوت کی۔ وہ عقیدے اور عمل میں کہیں مشرکہ شرک والے کے گھر کی تو نہیں ہے، بدعت والے کے گھر کو نہیں ہے۔ اور ایک ڈھکوسلا، ایک جھوٹا بہانہ، ایک شیطانی وسوسہ کہ ارے ہمارا عقیدہ بڑا پکا ہے، ہم توحید والے ہیں، ہمارے ابو امی بڑے سنت کے پیروکار ہیں، بدعتی کے گھر کے، شرک کے گھر میں پلنے والی، بچپن سے شرک اور بدعت کام کرنے والی لڑکی لوگ، میں اس کو صحیح کر لے جاؤں گا، میری ماں جو اس کی ساس ہوگی، میرے سسر جو بہت بڑے مولانا ہیں، ان کی تقریر سے متاثر ہو کر وہ سنت کی پیروی کرنے والی ہوگی، وہ صحیح عقیدے توحید۔ یہ ڈھکوسلا ہے، اس میں کامیابی نہیں۔ صحیح عقیدے والی لڑکیاں بنا شوہروں کے مر جائیں، سنت کے پیروکاروں کی لڑکیاں جہیز دینے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، براتیوں کا خاطر خواہ استقبال کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاریاں بریلیوں کے گھروں میں جائیں، وہ مزاریوں کے گھروں میں جائیں، وہ درگاہیوں کے گھروں میں جائیں، وہ اللہ کے آستانے کو چھوڑ کر ہر غیرو غیرو نتو خیرو کے آستانے پر اپنی زمین نیاز خم کرنے والے جھکانے والوں کے گھر جائیں، اور ایسی لڑکیاں ویسے پڑی رہیں کیونکہ جہیز دینے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ کالی ہیں، کیونکہ وہ سانولی ہیں، کیونکہ وہ پست اور ناٹے قد کی ہیں، کیونکہ وہ موٹی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو عقیدے میں پکی، اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز کیا ہو؟ نیک بیوی کی پہچان۔ عورتیں اگر ہے تو غور سے سنیں گی۔ جائز، نیک اور اسلامی کاموں میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو، اور یہ پتہ چلے گا ہونے والی ساس کو دیکھ کر کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنا فرما بردار ہے۔ یہ نیک بیوی کی دوسری نشانی، دوسری خوبی، دوسری پہچان، وہ شوہر کی فرما بردار ہو نیک کاموں میں، چاہے وہ کام دین سے متعلق ہو اور چاہے وہ دنیا، کبھی وہ انکار کرنے والی نہ ہو، کبھی وہ نافرمانی کرنے والی نہ ہو، کبھی وہ آئٹھنے والی نہ ہو، کبھی وہ نخرے باز نہ ہو، کبھی شوہر کے اطاعت و فرما برداری میں تھکن محسوس کرنے والی نہ ہو۔ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا گیا، ایو النساء خیر، یا رسول اللہ ایو النساء خیر، بچیاں بھی سنیں، عورتوں بھی سنیں، چاہے جو شادی شدہ نہیں ہے یا جو شادیاں کر چکی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا کہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے، اچھی ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلی چیز التی تسرہ اذا نظرا، وہ عورت بہتر ہے کہ جب بھی سرتاج، شوہر نامدار، کما کر کھلانے والے، حاکم، گھر کے راجا کی نظر اس پر پڑے تو دیکھتے ہی شوہر خوش ہو جائے، دیکھتے ہی، اپنی بیوی کو دیکھتے ہی بیوی اس طرح رہے کہ جیسے شوہر کی نگاہ پڑے،
शौहर को एक शादमानी मिले, अंदरूनी फराहत मिले, दाखिली अंदरूनी भीतर खुशी मिले। और जब एक शौहर अंदर से अपनी बीवी को देखकर खुश होता है तो वो सब कुछ निछावर करे। तो ये हो कि बीवी ऐसी हो कि जब भी आपकी निगाह उस पर पड़े तो आप खुश हो जाएं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वतुतीउहु इज़ा अमरा, अगर शौहर उसे किसी काम के करने का हुक्म दे, जिस्मानी तौर पर वो काम कर भी सकती है और उस काम में अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के दीन की, अल्लाह के कुरान की मुखालफत नहीं है, फौरन फर्मा बरदारी कर। अब ये नहीं कि बेचारी के पैर में दर्द है, सर में दर्द है, पैर बेचारी पकड़े बैठी है, आपको बना के ला चाहे नहीं, उसमें कहाँ से इताअत करेगी, जिस्मानी तौर पे बीमार है, कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो कर सकती है, उसमें अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी भी नहीं, तो फौरन मैं नहीं करती, मैं तो इतनी थकी हूँ, मैं ये ना, फौरन करने की ताकत तो करे। और औरतों के करना भी चाहिए। औरतों को अगर ताकत है और शरीयत के खिलाफ शौहर का हुक्म नहीं है तो यकीनन वो आपका रखवाला है, आपका सरताज है, आपके बच्चों का बाप है, आपका घर का राजा है, आपको उसकी इताअत करनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तो खालिफू फी नफ्सिया, अपने ज़ात के बारे में, इशारे में मैं कह रहा हूँ, अपने ज़ात के बारे में बारीक बात कह रहा हूँ, कभी शौहर की मुखालफत न करे। यहाँ तक कि अगर तवे पे रोटी रखे हुई पका रही है और शौहर को ज़रूरत पड़ गई, कहा मोहतरमा आओ थोड़ा आओ, तो फौरन रोटी जाए, जल जाए, खल जाए, तावा जल जाए, फौरन छोड़ करके मैं नहीं करता। औरतें मेरी बात को सुन करके हंसती होंगी, मैं नहीं करता। जिस नबी के नाम का कलमा पढ़ी हो वो नबी फरमाते हैं वला फी मालिही, और शौहर के माल में, शौहर के माल में शौहर की मुखालफत ना करे, अपने माल में नहीं, जो आपकी वरासत है, जो आपकी कमाई, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, चाहे वो किसी भी जरिए से हो, शौहर के माल में शौहर की मुखालफत ना करे। शौहर ने कह दिया नहीं 2 ही सूट रहेगा, बस खलास, ये मुझे नहीं, 2 दिन मुंह फुला करके नहीं, फरमाइश आप करे, करने का हक है, करो फरमाइश, करने का हक है, आप ही घर की रानी हो। लेकिन अगर शौहर कह दिया नहीं, खामोश, दूसरे अंदाज से उसे पटाओ। और इसी तरीके से शौहर की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में शौहर के माल, शौहर की औलाद, शौहर की इज्जत की हिफाजत, ये नेक बीवी की पहचान है। नेक बीवी की पहचान में से एक पहचान ये है कि शौहर की, जरा गौर से सुनेंगी, वो बीवी जो अपने शौहर की दीनी कामों में, जायज़ दुनियावी कामों में मदद करती हो, हेल्प करती हो, ताउन करती हो, वो औरत नेक औरत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरवाल गरीर के अंदर हसन सनद से एक रिवायत जिक्र किया जिसके अंदर ये बात मौजूद है। शौहर की मददगार हो, ताउन करने वाली हो, हेल्प करने वाली हो, अपनी ज़ात से, अपनी राय से, अपने मशवरे से, अपने खिदमत से और अपने माल से भी, दीनी कामों में भी और दुनियावी कामों में। नेक बीवी की पहचान में से एक पहचान, बल्कि 2-3 पहचान, वक्त ख़त्म हो रहा, मैं जल्दी से जिक्र कर, अल्लाह की फरमाबरदार हो, नबी की फरमाबरदार हो, शौहर की फरमाबरदार हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर भी और सूरह निसा के अंदर भी, अहज़ाब के आयत नंबर 35 के अंदर और सूरह निसा की आयत नंबर 34 के अंदर, ज़रा पढ़ लीजिएगा, अल्लाह ताला ने नेक बीवियों की पहचान बतलाई है। चुनाचे सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ नेक मर्दों की पहचान बतलाई है, खुद भी बतलाई है, वहीं पर अल्लाह ताला ने नेक बीवियों की पहचान बतलाई है। सूरह नाम है अहज़ाब, आयत नंबर 35। हर बच्ची को पढ़ना चाहिए, हर औरत को पढ़ना चाहिए, हर मर्द को पढ़ना चाहिए। नेक मर्दों की पहचान है और नेक बीवी क्या क्या है। पहली बात, नेक मुसलमान हो, नंबर 2 मोमिना हो, नंबर 3 अल्लाह, उसके रसूल और दीनी और दुनियावी जायज़ कामों में शौहर की फरमाबरदार हो, नंबर 4
सच्ची जबान वाली हो। वही जबान पाक साफ सुथरी मीठी है, उसी जबान का लुआब मीठा है जो जबान सच्ची हो, रास्तबाज हो, सच्ची जबान वाली हो, झूठी ना हो, फराडी ना हो, मक्कार ना हो। क्योंकि औरत मर्द अगर झूठ का आदी हो गया तो फितने होंगे, लेकिन अगर औरत के अंदर झूठ की आदत आ गई तो इतने बड़े बड़े फितने होंगे कि पूरे खानदान की नक झुक जाएगी, पेशानी झुक जाएगी। बेगैरती और बदनामी घर के दरवाजे पर एक बड़ा झूमर बन करके लटक जाएगा। सच्ची जबान वाली हो। नंबर 5, सब्र करने वाली हो, गुर्बत पर, फक्र फाका पर, बीमारी पर, शौहर की तरफ से कम खर्च पाने पर, शौहर की तरफ से कम पैसा पाने पर वगैरह सब्र करने वाले, मसाइब में बच्चों की परेशानी पर सब्र करने वाली हो, शौहर की परेशानी पर सब्र करने वाली हो, घरेलू परेशानी पर सब्र करने वाली हो, सास और ननद की तरफ से आजमाइश पर सब्र करने वाली हो, अल्लाह ताला से आजिज़ी करने वाली हो, घमंडी ना हो, तकब्बुरी ना हो, अकड़खो ना हो, तवाज़ु हो, खाकसारी हो, आजिज़ी करने वाली हो, अल्लाह ताला से हर मामले में अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाने वाली हो, और क्या खूबी हो, खैरात करने वाली हो। चाहे शौहर की तरफ से दिए गए हदिया और तोहफे में से, या चाहे अपने माल खास में से, अपने ज़ाती माल में से, अल्लाह की राह में सदका तो खैरात करने वाली हो। और क्या हो, नमाज रोज़े का पाबंद इस तरह हो जिस तरह वो किसी अहम से अहम चीज़ का पाबंद होती है, और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, और इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से लौ लगाने वाली हो, अल्लाह को याद करने वाली हो, अल्लाह से गिड़गिड़ाने वाली हो। नेक बीवी की खूबसूरत पहचान में से वो दीन का इल्म तलाशने वाली हो, दीन का इल्म, उसका ओढ़ना बछौना दीन का इल्म हो, दीन का इल्म रखने वाली, चाहे थोड़ी एड़ी और टेढ़ी क्यों ना हो, चाहे थोड़ा बदमिजाज ही क्यों ना हो, चाहे वो अकड़ के बोल, दीन का इल्म। क्योंकि जिस मर्द के अंदर, जिस औरत के अंदर दीन की सही समझ आ गई, वो अल्लाह ताला के यहाँ महबूब होगा, और इल्म दीन होने के नाते वो एक ना एक दिन ज़रूर सुधरेगी और दीन इल्म सीखने वाली हो। आखिरी पहचान बतलाते हुए मैं बताना चाहता हूँ नेक बीवी की, कि वो इस्लामी आदाब से, अच्छे अखलाक से मुज़य्यन हो, अच्छे अखलाक वाली हो। लिहाजा मेरे भाइयों, ऐसी बीवियाँ, ये इन सिफात और बहुत सारी सिफतें मैंने जिक्र किया नेक बीवी की पहचान में से। वफादार हो, अपने शौहर की वफादार हो, हर दुख को झेल ले, हर गम को झेल ले, हर तकलीफ को बर्दाश्त, लेकिन वफादारी उसके हाथ से जाने ना पाए, वफादारी हो, वफादार हो। सामने चाहे शौहर मौजूद हो या शौहर गैर मौजूद हो, शौहर के माल की, शौहर के इज्जत की, शौहर के अमानत की, शौहर की औलाद की पहरेदार हो, निगरानी करने वाली हो, और शौहर से अक़्द के मौके पर, निकाह के वक्त जो अक़्द पैमान किया है, जो एग्रीमेंट किया है, चाहे शौहर एग्रीमेंट के खिलाफ करे, उसकी हिफाजत करने वाली औरत ये वफादार औरत है। इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने वाली औरत वफादार औरत है। और वफादार वो औरत है जो अपने शौहर को उसकी बदखुल्की के बावजूद भी, हालांकि इंसानी फितरत के खिलाफ है, टूट कर मोहब्बत करने वाली, टूट कर चाहने वाली हो। शेख अता रहमान साहब आए क्लास से पढ़ा करके थके हारे, दरवाज़ा घंटी बजाया, घंटी पे आए तो ये नहीं कि जाओ बच्चों को, जाओ अब्बू आए हैं दरवाज़ा खोल दो, बच्चों को जाओ, अपना खुद पढ़ो, सारा गम लेकर के आए हैं, अपना खुद पढ़ो, दरवाज़ा खोलो, अस्सलाम वालेकुम नामदार, बड़े देर से आपके इंतज़ार में, बड़ी देर से दर पे नजरें झुकी थी, बड़ी देर से दर पे नजरें झुकी थी, जनाब आते आते बड़ी देर करती। अल्लाह की कसम, अगर हमारी बीवियां, हमारी होने वाली बीवियां अपने अंदर ये खूबी पैदा कर ले तो एक निहायत उजद, जिद्दी, हर धर्म शौहर, हैवान सिफत शौहर भी एक ना एक दिन इंसान बन जाएगा। अपने शौहर को टूट, हम बिना आपके नहीं, किचन में वो खाना बना रही है,
शेखत और अमां साहब मजलिस में बैठ के दर्स देने की तैयारी करे, लेकिन दिल लगा हुआ, मालूम नहीं शेखता कहाँ है। आए रोटी ला करके आए, देखे क्या क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। शौहर को टूट कर चाहने वाली बीवी ये वफादार बीवी है। शौहर के धन और माल की हिफाजत करने वाली बीवी ये वफादार है। शौहर के ऐब और कमी पर पर्दा डालने वाली बीवी ये वफादार बीवी है। शौहर की बदतमीजी पर पर्दा, ये नहीं कि अम्मा के यहाँ गई तो बयान की, सासू और सहेलियों से बयान की, इनसे क्यों भाई आपका शौहर, अरे हमारा शौहर तो ये जो ऐब है वो भी, जो ऐब नहीं वो भी, तोहमत पे तोहमत, झूठ पे झूठ, बोहतान पे बोहतान। वो औरत वफादार नहीं। मुश्किलात में शौहर की मदद करने वाली बीवी। वफादार बीवी कौन है? जो मुश्किलात में शौहर की मदद करे। और वफादार बीवी वो है जो हमेशा शरीयत के दायरे में, गौर करेंगे, हमेशा शरीयत के दायरे में बनाव सिंगार करने वाली हो, ज़ेबो ज़ीनत करने वाली हो, मुस्कुराते लबों वाली हो, खिले मुखड़े वाली हो, हसास बसात चेहरे वाली हो। ये नहीं कि बेचारा मौलवी किसी तरह कमा कमा के कंगन बनाया, चूड़ी बनाया, बाली बनाया, हार बनाया। कब पहना जाएगा? कब पहना जाएगा? औरतें गाली मुझे नहीं देंगी। जब जाना होगा मैके, जब जाना होगा शादी में या किसी पार्टी में, कपड़े कब पहनेंगी? अच्छा कपड़ा, ये नक्शो निगार वाला कपड़ा औरतें कब पहनती हैं? आप लोग अपने घरों के अंदर देखिए, कब पहनेंगी? जब पार्टी में जाना। अरे मर गया कम वक्त में, कमा के तेरे लिए जेवर बनाने में, कमा के तेरे लिए अच्छे चप्पल लाने में, कमा के तेरे लिए अच्छे कपड़े लाने में। लेकिन बस वही शौहर के सामने एक बेनिहायत घटिया किस्म का कपड़ा, एक कपड़ा बस वही हमेशा धुल के। अरे भाई तू ज़ेब ज़ीनत कर अपने शौहर के लिए। तुझे हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, तुझे तेरे रब ने हुक्म दिया है, तुझे तेरे नबी ने हुक्म दिया है, तुझे तेरे दीन ने हुक्म दिया कि तू खाली ज़ेब ज़ीनत कर, बनाव सिंगार कर, क्रीम लगा, सुरमा लगा, काजल लगा, अच्छे कपड़े पहन, मुंह साफ रख, बगल साफ रख, बदन साफ रख अपने शौहर के लिए। क्योंकि तू उसका जिस्म है, वो तेरा जिस्म है। तू उसका लिबास है, वो तेरा लिबास है। तू उसकी खुशी है, वो तेरी खुशी है। तू उसके नेकबख्ती का जरिया है, वो तेरी नेकबख्ती का जरिया है। और इसी तरीके से मुस्कुराता रहे। हाँ, ये हुए वक्त के लिहाज से नेक बीवी, वफादार बीवी। नेक बीवियों से शादी करने के बारे में तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दर्स को हमें गौर से सुनने, दूसरों के पास पहुंचाने और सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमा को सेम टाइम, और मौजू रहेगा नेक शौहर की पहचान। व जज़ाकुमुल्लाह खैर।